Now, hello student. Today we will continue the interrupt lectures, and this is the last lecture of your interrupt. In this lectures, we discuss about the RIM, that is your read interrupt maskable, and then we will be discuss about the trap, and that we will discuss last, that is direct memory access. This is the start with from the RIM, and we already discussed about the SIM, that is set interrupt maskable, and what are the purpose of your RIM, that is your read interrupt mask. Determine the current mask setting. रिम का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द करंट मास्क सेटिंग के लिए, जो करंट जो मास्क चल रहा है उसको सेटिंग करने के लिए उसमें सपोज मान लीजिए इन द previous class we discussed about the RST 5.5 and RST 7.5 is already working, and if you want in any instant of time, if you want to enable the RST 6.5, then first we check by using these RIM instructions. If the RIM instructions is check which interrupts are enabled, if those interrupts are enabled, and what are the interrupts are pending. What are the interrupts are pending that is discussed, that is present in the RIM instructions. In the RIM, that is your read interrupt mask. The load the accumulator with an 8-bit pattern and showing the status of each interrupt pin and mask. This is the suppose in the same way this is the RIM instructions. This is MS 5.5, MS 6.5 and MS 7.5. This is the your mask interrupt 7.5, 6.5 and 5.5. These are the interrupt enable. Here we use the interrupt enable pins, flip flops are used. This P5.5, this is your pending interrupt 5.5. This is the pending interrupt 6.5 and this is the pending interrupt 7.5. There is another piece your serial data input. Serial data input हम देख रहे हैं, और हम लोग ने सिम पिन जब सिम इंस्ट्रक्शन का सिम यूज़ किए थे सेट इंटरप्ट मास्क, वहाँ पर हम देख रहे थे SOD, डेट इज़ सीरियल डेटा आउटपुट की बात कर रहे थे. यहाँ पर हम लोग सीरियल डेटा इनपुट की बात करेंगे. तो रिम इंस्ट्रक्शन में अगर हमें सीरियली डेटा को इनपुट में लेना है तो हम लोग रिम का यूज़ करेंगे, अगर हमें सीरियली डेटा आउटपुट करना है तो हम लोग सिम का यूज़ करेंगे. दिस आर द डिफरेंस. अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग रिम क्यों यूज़ कर रहे हैं. अगर हम इंटरप्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक स्टेटस देखेंगे, हम चेक करेंगे कि कौन सा इंटरप्ट हमारा पेंडिंग है, मतलब किस इंटरप्ट को हमने इनेबल नहीं किया है. डेट विल चेक बाय द रिम इंस्ट्रक्शंस. तो रिम इंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये जो आपका इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, दिस 3, 4, 5 and 6, these are the pending interrupts. This is P5.5, P6.5 and P7.5. These are the indicate these interrupts are in the pending states. Okay. How to RIM set the accumulator in a different bits. These are the M5.5, this is RST 5.5 mask, RST 6.5 mask and RST 7.5. Here I cannot change here the 0 and 1. If RST 5.5 mask, RST 6.5 and 7.5, you see that if 0 it is available and 1 it is masked. In same way जब हम लोगों ने सिम में देखा था 0 में अवेलेबल होगा और 1 में इट इज़ अनमास्क्ड. I is your interrupt enable value of the interrupt enable the flip flop. Interrupt enable का मतलब ये है कि जब तक आपका interrupt enable नहीं होगा तब तक भी all flip flops are in the reset form. तो सबसे पहले आपको रिम इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है to will enable the interrupts करेंगे, then we will go to the sim instructions. That is the serial data inputs. That is P7.5, it is an RST 7.5, it is an interrupt pending. RST 6.5, that is called as interrupt pending, and RST 5.5, this is the interrupt pending. Sorry, the RIM instructions and the mask. If bit 0 to 2 shows the setting of the mask for each of the RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. तो आप देख रहे हैं
These are the 0 से 2 वैल्यूज 5.5, 6.5 एंड 7.5 को हम लोग मास्क को सेटिंग कर रहे हैं. They return the content of 3 mask flip-flops. They can be used by program to read the mask setting in order to modify only the right mask. Bit 3 shows whether the maskable interrupts are process it is an enable या not. Bit 3 जो आपका bit 3 है that is your interrupt, IE interrupt enable. This is an your interrupt enable. And bit 3 shows whether the maskable interrupt process is enabled या not. आप देखिए जब सिम का यूज़ कर रहे थे तो हम लोग वहाँ पर MSE यूज़ कर रहे थे, मास्क सेट इनेबल, और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं IE इंटरप्ट इनेबल. सेम वे है, आप उसको इंटरप्ट इनेबल को जब तक नहीं करेंगे तो बिट 0 से 2 आपका वर्किंग मोड नहीं होगा. इट रिटर्न द कंटेंट ऑफ द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप. इट कैन बी यूज बाय RAM टू डिटरमाइन वेदर या नॉट टू इंटरप्ट आर इनेबल. आप चाहते हैं इंटरप्ट को इनेबल करना या डिसेबल करना अकॉर्डिंग टू द अप्लाई द सिग्नल्स. नेक्स्ट है रिम इंस्ट्रक्शंस एंड द मास्क. बिट 4 to 6 whether or not there are pending interrupts on RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. Bit 4 and 5 return the current value of RST 5.5 and RST 6.5 pins. Bit 4 and bit 5 returns the current value of RST 5.5 and RST 6.5 pins. Bit 6 return the current value of RST 7.5 memory flip flop. देखिए ये जो आपका पेंडिंग इंटरप्ट्स है, क्या कहना चाह रहा है, सी RST 5.5 में जो RST 5.5 है ये पेंडिंग इंटरप्ट्स बताता है RST 7.5 के मेमोरी का पेंडिंग इंटरप्ट्स. RST 6.5 और RST 5.5 इज द जो आपका पेंडिंग इंटरप्ट्स है. दिस इज डायरेक्टली, so this is the RST 5.5 and RST 6.5. you see in this figure, this is the bit 4 and 5 return the current value of RST 5.5 and RST 6.5 पे. ये जो डायरेक्टली जो आपको वैल्यूज, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट किससे है, आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका RST डेट इज योर पेंडिंग पिन से, और आपका बिट 6 जो RST 7.5 है उसका पेंडिंग पिन जो है वो कनेक्ट है आपके मेमोरी से. बिट 7 इज यूज फॉर द सीरियल डेटा इनपुट. ठीक है. रिम इंस्ट्रक्शंस रीड द वैल्यूज ऑफ SID पिन ऑन द माइक्रोप्रोसेसर्स एंड रिटर्न इट इन द बिट्स. रिम इंस्ट्रक्शन रीड द वैल्यूज ऑफ द SID पिन्स जो that is called pin and the microprocessor return to the bit. Next we discuss about the pending interrupts. Since the 8085 has the 5 interrupts lines, interrupts may occur during the an ISR, that is interrupt service routine, and remain pending. Using the RIM instruction, the programmer can read the status of the interrupt line and find if there are any pending interrupts. तो बेसिकली आपका रिम इंस्ट्रक्शन का काम ये है कि इट विल चेक एनी इंटरप्ट्स आर पेंडिंग. आपने सपोज मान लीजिए कि आपने सिम इंस्ट्रक्शन यूज़ किया और सिम में आपने फर्स्ट इन द प्रीवियस जो आपको क्लास था उसमें आपने देखा कि RST 5.5 और RST 7.5 को आपने इनेबल स्टेट में किया और रेस्ट पार्ट को आपने क्या किया, डिसेबल स्टेट में सपोज कर दिया. तो और उसके बाद आपका ये हुआ कि नहीं हम चाहते हैं कि RST 6.5 को इनेबल करें. तो जब आप 6.5 को इनेबल करना चाहेंगे तो वो इनेबल का स्टेट क्या होगा, पेंडिंग में शो करेगा कि ये जो अभी आपका है इट विल बी वांट टू इनेबल, आप इसको अब इनेबल करना चाहिएगा. तो देन रिम इंस्ट्रक्शंस विल चेक विच वन इज विच इंटरप्ट इज योर पेंडिंग स्टेट्स एंड विच इंटरप्ट इज इन योर एक्टिव स्टेट्स. जो इंटरप्ट्स आपका पेंडिंग स्टेट्स में होगा रिम इंस्ट्रक्शंस विल सेंड टू द सिम को वो सेंड करेगा कि आप RST 6.5 को आप इनेबल कर सकते हैं. ठीक है. द एडवांटेज इज बीइंग एबल टू फाइंड अबाउट द इंटरप्ट RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 without having the enable low level of interrupt like INTR. ठीक है. तो these are the advantage of this RST 7.5, 6.5 and 5.5 to without having any enable low the interrupt like INTR.
Next, using the rim and sim to set the individual mask. Example, suppose the set mask enable the RST 6.5 without modifying the mask of RST 5.5 and 7.5. Very important. Yes, if you understand this example, then we clear all this thing. Suppose set the mask of enable RST 6.5 without modifying the mask of RST 5.5 and 7.5. देखिए क्या हो रहा है कि जो आपका RST आप चाहते हैं कि RST 6.5 को इनेबल करें, बट वी कैन नॉट मॉडिफाई, हम इसमें कोई चेंजेस ना करें 7.5 और 5.5 में कोई चेंजेस ना करें। हमारी इच्छा ये है कि हम ये 6.5 को इनेबल करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू दिस करेक्टली वी नीड to use the rim instruction and to find the current setting of RST 7.5 and RST 5.5 and RST 7.5 में। तो रिम इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि रिम इंस्ट्रक्शन जो है आपका करंट स्टेटस चेक करता है कि करंट स्टेटस में जो आपका इंटरप्ट है उसका करंट स्टेटस क्या है। आप क्या चाहते हैं कि RST 6.5 को इनेबल करें, उससे पहले ये करंट स्टेटस चेक करता है कि RST 7.5 और RST 6.5 का RST 5.5 और RST 7.5 का करंट स्टेटस क्या है। क्योंकि आपको करंट स्टेटस नहीं पता होगा तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं सिम इंस्ट्रक्शन में कि किसको आपको इनेबल करना और किसको आपको डिसेबल करना है। ठीक है, देन वी यूज द सिम इंस्ट्रक्शन टू सेट द मास्क यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, और इसके इंफॉर्मेशन से आप रिम के इंफॉर्मेशन से आप सिम के प्रोग्रामिंग को आप लिख सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि RST 7.5 और RST 5.5 आपका एक्टिव है या वो मास्केबल फॉर्म में है। वो इट विल बी अंडरस्टैंड दिस आर द बेसिकली इंटरप्ट्स का करंट स्टेटस हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिम इंस्ट्रक्शन से कि आपका इंटरप्ट का करंट स्टेटस क्या है, क्या वो एक्टिव मोड में है, क्या वो मास्केबल मोड में है। ओके, give the both rim and sim, use the accumulator, and we can use the some logical operations to mask the unneeded values returned by the rim and return into the values needed by the sim। मतलब जो भी वैल्यूज़ हमें सिम और रिम के द्वारा, मतलब रिम में जो वैल्यूज़ है लॉजिकल ऑपरेशंस हम लोग यूज़ करके दैट विल बी कन्वर्टेड दिस रिम वैल्यूज़ इनटू द सिम यूजिंग द सिम एंड rim and sim to set the individual mask. Assume RST 5.5 and 7.5 are enabled. हमने ये एज्यूम कर लिया है कि मेरा ये मानना है कि RST 7.5 और 5.5 इनेबल है, द इंटरप्ट एंड द इंटरप्ट प्रोसेस इज डिसेबल, और जो इंटरप्ट प्रोसेस है वो डिसेबल है। ठीक है, फर्स्ट रिम इंस्ट्रक्शन, रीड द करेंट सेटिंग। रिम का काम क्या है कि आपका करंट सेटिंग देखेगा कि माइक्रो प्रोसेसर में जो इंटरप्ट है उसका करंट सेटिंग क्या है। ठीक है, द करंट सेटिंग में आपका देखा कि आपने क्या देखा कि 5.5 आपका क्या होगा, 0 होगा, MS 6.5 1 होगा, क्योंकि ये आप किसको ऑन किए हैं, RST 5.5 और 7.5, इसका मतलब मास्क किसका अवेलेबल होगा, 5.5 और 7.5 का, और 6.5 आपका क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा क्योंकि आप उसको इनेबल नहीं कर रहे हैं। दिस इज द इंटरप्ट इनेबल, द इंटरप्ट प्रोसेस इज डिसेबल, जो आपने क्या किया है इंटरप्ट प्रोसेस को डिसेबल किया है। ठीक है, द पेंडिंग जो है आपका 5.50, 6.50, 7.50 एंड SDI आपका 0 स्टेट में, all are disable form। okay, the first ORI 08 और ऑपरेशन आप कर रहे हैं और इमीडिएट ऑपरेशन विथ 08। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में आपका क्या स्टोर है 00001 000, इट विल बी और ऑपरेशन विथ 0800। ठीक है, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं 00000। This is your OR operation with accumulator 08। okay, no, this is an OR operation with
08 and that will be getting the 000 after this OR operation we getting this. ठीक है, हमने 08 क्यों किया? क्योंकि हमने इंटरप्ट को इनेबल किया है. आपने रिम इंस्ट्रक्शन यूज़ किया, रिम के बाद आपने क्या यूज़ किया? ORI08. ORI08 का मतलब ये है इट विल बी इनेबल द इंटरप्ट्स लाइक दिस. आप इस तरह समझिए. आपने ये दिस आर द कंडीशन. ठीक है, देन द इंटरप्ट्स प्रोसेस इज डिसेबल. सबसे पहले इंटरप्ट मतलब RST 7.5 RST 5.5 आर इनेबल एंड द इंटरप्ट प्रोसेस आर डिसेबल. ठीक है, इंटरप्ट प्रोसेस आपका जो है डिसेबल है क्योंकि आप इंटरप्ट इनेबल को ज़ीरो किए हुए हैं. दिस आर द कंडीशंस. अब आप क्या कर रहे हैं कि जब तक आप इंटरप्ट इनेबल को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको ये रिम वर्क नहीं करेगा. इसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या देना होगा? इनपुट 1. ठीक है, जब आप इसको इनपुट 1 दीजिएगा तो क्या होगा? 0 0 0 0 1. सिर्फ आप इसको 1 कर रहे हैं, इंटरप्ट इनेबल को 1 करो और सब जो है आपके वैल्यूज़ क्या है? 0. ऑल आर 0. It's look like this. OR operation with 08. After this OR operation, A value आपका ये है और immediate value this 8. After this OR operations, we get this value. After OR operation के बाद आपको ये value find out हो गया. ठीक है. Next आपने क्या किया? Next operation आपका क्या है? SIM. अब आप क्या कर रहे हैं? सिम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं. सिम में क्या देखिए क्या हो रहा है? सिम में आपको क्या करना है कि आपको 6.5 को इनेबल करना है. ये आपका 6.5 को, ये पार्ट को आपको क्या करना है? इनेबल करना है. और ये पार्ट आपका MS 7.5 इनेबल है, ये पार्ट आपका इनेबल है और ये पार्ट आपका क्या है? इसको आपको ज़ीरो करना है. ठीक है, और दिस MSC इज़ 1, RST 7.5 इज़ 0, ये आपका 0, ये 0 और दिस 1 0. ठीक है, तो आपने क्या किया कि सिर्फ आप देखिए आपका यहाँ पर जो था वो क्या था? 1 था. ठीक, आपको क्या करना है? इस 1 को 0 करना है, इस 1 को क्या करना है? 0 करना है एंड देन ऑल आर सेम. तो आप क्या करेंगे? ANI 0D. ANI 0D का मतलब ये है दिस इज this one and this is 1101. Turn off the serial data and does not reset the RST 7.5 flip-flop and set the mask. RST 6.5 is off and don't care will to be 0. Okay, तो आपको क्या, this is the value of D. तो आपको एंड ऑपरेशन करना है. तो या तो आप ये कर सकते हैं ANI 0D कर सकते हैं, नहीं तो आप कर सकते हैं ANI 08. There is in two options. Either if you 0 ANI 0D या if you written as ANI 08. क्योंकि आपको ऑफ किसको करना है? सिर्फ आप MS 6.5 को अगर आप 0 कर देंगे तो ये आपका भी इनेबल हो जाएगा. क्योंकि पहले ये रिम जब चेक कर रहा है, करंट स्टेटस देख रहा है, तो करंट स्टेटस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका MS 6.5 जो है वो आपका क्या है? ऑफ स्टेट में है. नेक्स्ट स्टेट में आपको सिम के द्वारा क्या करना है? सेट करना है इंटरप्ट को. तो इंटरप्ट को सेट करने के लिए आप क्या करेंगे? MS 6.5 को 0 करेंगे. तो आप ये लॉजिकल ऑपरेशन ANI 0D कर सकते हैं या ANI 08 करेंगे तो आपका ये पार्ट सेट हो जाएगा और MSC वैल्यू अगेन आपका 1 इज कमिंग. So this is the way, this is called as your SIM. After then we apply the SIM instruction, this accumulator, this MS 6.5 will be working. तो बेसिकली रिम आपका क्या कर रहा है? रिम आपका करंट स्टेटस बता रहा है कि आपका करंट स्टेटस क्या है. ठीक है, मतलब आपका अभी करंट स्टेटस, कौन आपका वर्किंग मोड में है, कौन आपका पेंडिंग मोड में है, किस तरह का आपका करंट स्टेटस आपका इंटरप्ट का है. ओके, so these are the way to, these are called the
These are the RIM instruction. This is RST 7.5 is interrupt pending, and these are the interrupt pendings are there. Okay. Now the next instruction is your trap. Trap is your non-maskable interrupt. This is the only your non-maskable interrupts. Here we cannot be used for DI, EI instructions. There is a no programming to stop these interrupts. It does not need to enable because it does not disable. इसे हम ना enable कर सकते हैं, ना इसे हम disable कर सकते हैं. It has the highest priority among the interrupts. ये highest priority होता है among the interrupts. It is the age and level triggered. ये बहुत ही important point है, age and level triggered. I will discuss what are the meaning of this age and level triggered sensitive. It needs to be high and stay high to be recognized. Once they recognize, it would not be recognized again until it goes low and then high again. Trap is usually used the power failures and emergency shut off. ट्रैप का हम लोग यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में. जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और अचानक आपका पूरा टोटल शट डाउन हो जाए, तो दिस ट्रैप विल बी वर्किंग. द ट्रैप अचानक शट डाउन हो जाएगा तो देर इज़ एन बैकअप. एक बैकअप के लिए एक इमरजेंसी सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है फर्स्ट वी स्टोर, इट विल बी स्टोर एंड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज देयर इज एन सडन शट डाउन्स आर हैपन. जैसे हम लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखते हैं CPU अचानक जब शट डाउन होने जाता है, लाइट कट जाती है, देयर इज एन वन मैसेज आर कमिंग कि द शट डाउन्स हो चुका है. आप देयर इज एन फ्यू बैकअप्स आपके पास है एंड दैट विल बी बाइंड अप योर इंफॉर्मेशंस. आप अपने इंफॉर्मेशंस को कहीं स्टोर कर लें या जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लें. So this is the traps are usually used for the power failures and emergency shut-offs. And what are the importance? It says that there is an age and level sensitive. ये age और level sensitive होता क्या है देखिए. In the trap there is an age and it is also some period of time that is also active for the positive. There is in some positive age as well as this is the your level triggered and also the age trigger. होता क्या है देखिए, ऐसा क्यों हम लोग इस तरह से ट्रैप को कंट्रोलिंग करते हैं कि लेवल और एज दोनों हो. क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कि पावर्स फ्लक्चुएशंस हो रहा है. जब पावर का फ्लक्चुएशंस होता है देयर इज एक स्पाइक्स आर जनरेटेड either in the because the fluctuator the positive spikes are generated at the time your trap will be enable. जो पावर का फ्लक्चुएशंस होगा तो क्या होगा, ट्रैप आपका एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि पावर शट डाउन हो रहा है, बट वो एक फ्लक्चुएशंस होगा. तो उस फ्लक्चुएशंस में क्या होगा कि आपका ट्रैप इनेबल कंडीशन में आएगा. बट नहीं, आपका ट्रैप इनेबल कब होगा, जब आपका एक फ्लक्चुएशंस होगा और वह फ्लक्चुएशंस एक लॉन्ग ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक होगा, देन द ट्रैप विल बी इनेबल्स. फॉर दिस रीज़न वी विल बी कंट्रोल द ट्रैप. अगर हम इस तरह से क्लॉकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक स्मॉल फ्लक्चुएशंस भी होगा तब भी ट्रैप इनेबल हो जाएगा. अब इस केस में क्या होगा कि फ्लक्चुएशंस हो बट एक ड्यूरेशन तक हो, देन इट विल बी वर्किंग, देन द ट्रैप इज इनेबल एंड इट विल बी वर्क एज ए शट डाउन. Now these are the internal interrupts priorities, and the internally the 8085 implement an interrupt priority schemes, and the interrupts are ordered as follows. The trap is the highest priority, then RST 7.5, then RST 6.5, then RST 5.5, and INTR is the lowest priority of the interrupt. However, the trap has the lowest priority than HLDA. This is your hold instruction signals. HLDA signals is used for DMA. वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में होल्ड सिग्नल और ट्रैप सिग्नल बोथ आर कमिंग, क्या होल्ड सिग्नल और ट्रैप सिग्नल दोनों एट ए टाइम आपके माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल हिट करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट रीड द होल्ड सिग्नल. होल्ड इज देन हायर प्रायोरिटी देन ट्रैप. ट्रैप से ज़्यादा प्रायोरिटी में आपका होल्ड सिग्नल को लिया जाता है. ठीक है, तो अगर ट्रैप सिग्नल एज वेल एज होल्ड सिग्नल विल रीचेस टू द माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर विल फर्स्ट रिसीव द होल्ड सिग्नल देन द ट्रैप सिग्नल. फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर अगर आपका मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट कर रहा है और ये प्रोग्रामिंग सपोज मान लीजिए 4T स्टेट का है,
कोई प्रोग्राम है, कोई ऑपकोड को वो रीड कर रहा है, 40 स्टेट का ऑपकोड है उसको रीड कर, और एट द टाइम आपका ट्रैप और होल्ड इंस्ट्रक्शन बोथ आर हिट टू द माइक्रो प्रोसेसर के पास दोनों सिग्नल रिसीव होता है। देन माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2T स्टेट तक माइक्रो प्रोसेसर ने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिए, देन द योर टू ट्रैप सिग्नल्स और होल्ड सिग्नल्स रीच कर गए, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि 2T स्टेट के बाद प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, देन ही विल रिसीव द होल्ड इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब हम लोग इंटरप्ट के इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे थे तो क्या देख रहे थे कि जब माइक्रो प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शन को देखता है कि कोई इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट सिग्नल आ रहा है, इंटरप्ट सिग्नल रिसीव कर रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, सबसे पहले उस जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको वो कंप्लीट करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टैक में स्टोर करता है। लेकिन जब होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को रिसीव होता है तो माइक्रो प्रोसेसर अभी देखिए 2T स्टेट में है, तो देन इट विल बी स्टॉप इट 2T स्टेट। माइक्रो प्रोसेसर आपका 2T स्टेट में ही अपने प्रोसेस को रोककर होल्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, देन इट विल बी एग्जीक्यूट फर्दर। आफ्टर कंप्लीटिंग द होल्ड इंस्ट्रक्शन the next two states will be executed. These are the difference between the interrupt and the hold instructions. Okay, the 8085 interrupts, and these are the these are the interrupts. INTR is your maskable interrupts. RST 5.5 and 6.5 is also maskable. RST 7.5 is maskable, but the trap is your non-maskable interrupts. मास्किंग मेथड्स, DIEI इनेबल्स, DIEI इसमें हम लोग सिम इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ करते हैं, डेट इज़ योर मास्क इंस्ट्रक्शन जिसको आप कर सकते हैं M7.5 M6.5, तो हम लोग सिम में ये यूज़ नहीं करते, सिम इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड एंड नन देर इज़ अ नो, डेट इज़ योर नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स मेथड्स. These are non-vector interrupt, your INTR, vector interrupt and vector interrupt. No memory, no memory. Only the RST 7.5, trap is also no memory. Only the RST 7.5 में there is in one memories are used. INTR is your level sensitive. RST 7.5, 6.5 is also level sensitive, and RST 7.5 is your age triggered, and your trap is your level and age both are triggered. It is very important this chart if you remember always. Okay, now next we discuss about the direct memory access. What is the direct memory access? In this say we understand about the direct memory access, we will be understand very well. Now we see this is the direct memory access. Suppose this is your 8085 microprocessor, and in the 8085 microprocessor this is your memory, and this 8085 is there is an address, this is your data, is the two directional directions, and this is your control pins. Control pins are working as your read write operations, these are the working, and this is your direct memory access. These are the one ICs, and there is so many ICs are used for the direct memory access. This is 82559, these are the ICs we will be used as a direct memory access. And this direct memory access का क्या काम है देखिए, suppose this hold instructions are sent by this direct memory access. ये direct memory access क्या होता है कि एक hold instruction को send करता है 8085 receive this hold instruction को receive करता है, and all this address, data and control lines are suspended. This all are in freeze. आपका जो ये एड्रेस है, डेटा और कंट्रोल लाइन 8085 जो है उसको फ्रीज कर देता है, एंड दैट एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल लाइन विल ट्रांसफर टू द दिस इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. मतलब जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपका होल्ड लाइन को रिसीव करता है, जैसे होल्ड लाइन को रिसीव करता है, आपका एड्रेस, डेटा और कंट्रोल लाइन जो माइक्रो प्रोसेसर जिस एड्रेस और डेटा लाइन को हैंडल कर रहा है उसको वो फ्रीज कर देता है, और वो हैंड ओवर कर देता है एड्रेस, डेटा और कंट्रोल लाइन को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को हैंड ओवर कर देता है. मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस 3 लाइन जो आप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से कनेक्ट है, ये वर्किंग मोड में आ जाता है, और ये लाइन जो है ये लाइन आपका फ्रीज आउट हो जाता है. ठीक है, और 8085 जब आपका होल्ड इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है तो वो सेंड करता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट.
होल एक्नॉलेजमेंट जब 8085 माइक्रो प्रोसेसर रिसीव कर लेता है, सॉरी आपका डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस रिसीव कर लेता है, ही नोज, वो समझ जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अंडरस्टैंड दैट कि दिस एड्रेस डेटा और कंट्रोल लाइंस आर कनेक्टेड, आर ऑलरेडी एक्सेस बाय द डीएमए। डीएमए अब उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा और 8085 माइक्रो प्रोसेसर फ्रीज आउट हो जाएगा। अब उसका कोई भी कंट्रोल, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा एड्रेस डेटा और कंट्रोल लाइन का। अब कंट्रोल कौन करेगा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एड्रेस डेटा और कंट्रोल को कंट्रोलिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, दिस आर द डिवाइस, दिस आर द एक्सटर्नल डिवाइस। आप देखे होंगे कि आजकल नया नया यूएसबी आने लगा है, जो USB 3 जिसमें कहा जाता है कि डेटा बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पर हम लोग डीएमए का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हम लोग एक SID और SOD पिन जो हम लोग सिम और रिम में यूज़ करते हैं, उस केस में क्या होता था, 1 बाय 1 डेटा ट्रांसफ़र होता था, इट्स टेक टाइम। हम लोग क्या होता था, फर्स्ट जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किए थे बिफोर डीएमए, तो हम लोग क्या करते थे, ये एक्सटर्नल डिवाइस को 8085 में कनेक्ट करते थे, और ये 8085 में जब ये कनेक्ट होता था, आपका जो डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस, यहाँ पर मान लीजिए एक्सटर्नल डिवाइस हम 8085 में कनेक्ट किए, फर्स्ट 8085 क्या करता था, इस डिवाइस को रीड करता था, और डेटा को जब ये ट्रांसफ़र करता था तो 1 बाय 1 डेटा को ट्रांसफ़र करता था, इट्स टेक टाइम। अब क्या हो रहा है, अब जो आपका डेटा का डीएमए के थ्रू हो रहा है, देयर इज़ अ नो वर्किंग ऑफ योर प्रोसेसर, अब प्रोसेसर का कोई काम नहीं है। अब ये डायरेक्ट मेमोरी को डीएमए एक्सेस करना स्टार्ट करता है, बस ये होल्ड इंस्ट्रक्शन भेजता है और प्रोसेसर एक्सेप्ट करता है, और सारा चीज़ जो है वो डीएमए को हैंड ओवर कर देता है। अब क्या होता है कि डेटा का ट्रांसफ़र पैरेलली होने स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर पहले सीरियली 1 बाय 1 होता था, पैरेलली हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दें, तो इट इज़ फास्टर। तो अब क्या होगा कि ये D1 और D2 क्या करता है, डेटा को या तो हम कंट्रोल सिग्नल भेजेंगे कि या तो हम रीड ऑपरेशन करें या राइट ऑपरेशन करना चाहते हैं मेमोरी में, अकॉर्डिंग टू द डिवाइस वी विल बी वर्किंग। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ योर डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं, और हम लोग डेटा को आउटसाइड ऑफ द डिवाइस में, पेरिफेरल डिवाइस में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या तो ट्रांसफ़र करेंगे या पेरिफेरल डिवाइस से मेमोरी में राइट करेंगे। तो दिस इज़ द वे, नाउ वी अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ योर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। This is a process where the data is transferred between the two peripheral directly without any involvement of the microprocessor. Will say कि microprocessor क्या होता है, सारा कुछ सस्पेंडेड कर देता है, आपका एड्रेस डेटा और कंट्रोल लाइन को कौन हैंडल करता है, फिर डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, और माइक्रो प्रोसेसर जो आपका 8085 है वो सारा प्रोसेस अपना स्टॉप कर देता है। And the processor employs the hold pins on the microprocessors. The external DMA controller sends a signal to hold the pin of the microprocessor. The external DMA controller send the signal, hold signal को वो send करता है microprocessor को, and the microprocessor complete the current operation and send the signal HLDA to stop using the bus. जस्ट मैंने वही कहा कि माइक्रोप्रोसेसर वो HLDA सिग्नल भेजता है और सारे डेटा बस, एड्रेस बस सबको स्टॉप कर देता है वर्किंग, और डायरेक्ट कंट्रोल अब कौन करता है, डीएमए। वंस द डीएमए कंट्रोल इज डन, इट टर्न्स ऑफ द होल्ड इंस्ट्रक्शन। जैसे डीएमए कंट्रोलर इज डन, वंस द डीएमए कंट्रोलर इज डन, इट टर्न्स ऑफ द होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड द माइक्रोप्रोसेसर टेक्स बैक टू द कंट्रोल ऑफ द बस। और जैसे डीएमए वर्क कंप्लीट करता है, होल्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ होता है, माइक्रोप्रोसेसर अगेन हैंड ओवर माइक्रोप्रोसेसर के हैंड में आ जाता है आपका कंट्रोल लाइन, डेटा लाइन और एड्रेस लाइन। जब तक होल्ड इंस्ट्रक्शन एक्टिव है, माइक्रो प्रोसेसर डीएक्टिव है। जैसे ही आपका होल्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर अगेन एक्टिव मोड में आ गया, एंड इट विल बी हैंडल योर एड्रेस डेटा एंड कंट्रोल लाइन। तो ओवरऑल दिस इज योर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एंड दिस आर द सर्किट डायग्राम्स वी अंडरस्टैंड। ओके, now in this lectures we complete your whole interrupts part, and you know about the trap, and you know the RST 7.5, 6.5 and 5.5, and this is the one